Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem A min max swap and problem B from Code Forces round 768 division 2. Okay, so let's just see problem A first. Min max swap. You are given two arrays A and B of n positive integers each. You can apply the following operations to them any number of times. Okay, so we have exactly two arrays of equal size. Okay, select an index and swap AI with BI and BI with AI obviously. So we have two arrays of n positive integers and we can apply this operation, that is swapping. We have to select an index I and we can swap elements from both the arrays for that index only. Okay, now we have to find minimum possible value of max of complete array A multiply max of complete array B you can get after applying such operations any number of times, possibly 0. Okay, so if you see test cases, we have very low value of n, okay, and very low values of AI and BI. That doesn't matter exactly in this question. Okay, now what we have to give output, print a single integer minimum possible value of max of complete array A multiply max of complete array B. Okay, or you can say that we have to print minimum value of product of two values. Okay, you can get after applying such operations any number of times. Suppose you see test cases, we have total 3 test cases and in first test case we have n is equals to 6, then we have complete array A and complete array B. So if you see explanation, you can apply operation at indices 2 and 6. Okay, and when you will swap these two indices, you will be having array A as this and B as this. Okay, and now for minimum product, what you can simply do is maximum of this complete array will be 6 and maximum of this complete array will be 3 and my product will be 18. Okay, so now I'm telling you the approach. I hope question clear ho gaya hoga. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. Okay, now if I explain you the question in simple words, what you have is you have two arrays, array A and array B, some positive integers and equal number of integers in both arrays. Okay, you say. Now what we have to minimize is you have some value, that is max of complete array A multiply max of complete array B. ओके तुम्हें इस चीज को मिनिमाइज करना है और आई कैन से दैट आई हैव टू मिनिमाइज प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज. ओके, you can say max of complete array B as capital A and this as capital B. Okay, so I have to minimize this thing. I can minimize product of two values when obviously मैं ये नंबर भी मिनिमाइज कर दूं और ये नंबर भी मिनिमाइज कर दूं. ओके, then obviously product of both numbers will be minimized. ठीक है, मुझे काइंड ऑफ दोनों नंबर्स को मिनिमाइज करना है. नाउ लेट्स जस्ट डिसाइड कि ये ए और बी की वैल्यूज मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक ओवर दीज टू एरेज. अब इफ आई टॉक अबाउट बोथ दीज एरेज तो एग्जैक्टली होगा क्या, इन दोनों एरेज में, ठीक है, इस एरे में और इस एरे में जो भी एक नंबर के बारे में बात करते हैं, इधर ए और बी, ठीक है, जो भी सपोज इन दोनों का सबसे मैक्सिमम नंबर होगा इन दोनों एरे का मिला के, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज एरेज, बिगेस्ट नंबर इन बोथ दीज एरेज, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट में तो आएगा ही आएगा. वाई, लेट्स जस्ट चेक व्हाट आई एम सेइंग. सपोज तुमने कुछ भी स्वैपिंग्स कर दी, ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड स्वैपिंग्स थी सारी स्वैपिंग्स कर दी. ओके, तुमने सारी स्वैपिंग्स कर दी, रिक्वायर्ड स्वैपिंग्स. आफ्टर दैट तुम जब मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट एरे ए निकाल रहे हो एंड मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट एरे बी निकाल रहे हो, तो उसमें क्या दोनों का मैक्सिमम इंक्लूड होगा कहीं ना कहीं. जो इस दोनों का टोटल मैक्सिमम है वो कहीं ना कहीं उन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो होगी. इट इज़ क्वाइट ईजी टू इंट्यूट दिस. ओके, तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस इज कि सॉरी, इन दोनों में एक नंबर तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दीज बोथ एरेज, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा ही होगा. ओके, तुम उसको कहीं भी स्वैपिंग करके हटा नहीं सकते. तुम उस नंबर को ए में डाल दोगे मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज एरेज तो मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट एरे ए बन जाएगा. तुम उस नंबर को बी में डाल दोगे तो वो मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज एरेज बी बन जाएगा. ओके,
तो लेट्स से कि जो मेरा ए था, कैपिटल ए, वो क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज एरेज, ओके। एंड मेरे पास इस नंबर को चेंज करने की चॉइस अवेलेबल नहीं है, ओके, बिकॉज ये नंबर तो मेरा प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, दैट आई कैन मिनिमाइज बी, ओके, मैं इस बी को मिनिमाइज कर दूं। अब मुझे एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन बचा क्या, दैट आई हैव टू एरेज, ओके, और मुझे करना क्या है एग्जैक्टली कि जो मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट एरे बी है, मैं उस चीज़ को मिनिमाइज कर दूं, ओके, मैं उस चीज़ को मिनिमाइज कर दूं। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट एरे बी को मिनिमाइज करना है, तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज, मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब छोटे एलिमेंट्स रखूँ, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज मैं इस इंडेक्स को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या स्वैप कर दूँ, मैं इसको बड़ा बना दूँ और इसको छोटा बना दूँ, इसको बड़ा बना दूँ, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको छोटा, इसको बड़ा, इसको छोटा, ओके। तो इन दिस वे आई विल बी हैविंग ऑल द स्मॉलर वैल्यूज इन एरे बी, एंड अल्टीमेटली जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज मैक्स ऑफ एरे बी, विल बी सिंपली minimized, okay. So in this way what I can simply do is I will simply swap elements and मैं एरे ए में इसकी बड़ी वैल्यू रखूंगा एंड एरे बी में इसकी छोटी वैल्यू, ठीक है। एंड अल्टीमेटली मेरा जो आंसर होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एरे ए एंड मैक्स ऑफ एरे बी। So this was the complete question. I explained this question in the best possible way. If you still have any doubt, you can ask me in comment section, okay. So now I'm showing you the code. Here is the simple code. Took value of n as input, then value of array A and array B, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, जहाँ पे भी मुझे array AI की वैल्यू BI से छोटी मिलेगी, I will simply swap those values, and at the end I will simply print the output as maximum element of complete array A multiply maximum element of complete array B, okay, fine. Now let's just see question B. Fun with even subarrays from Codeforces round 768 division 2. You are given an array of n elements. You can apply the following operation to it any number of times. Okay, so I have an array and I can apply this operation any number of times. Select some subarray from A of even size 2k that begins at position L. L can be from index 1 to L plus 2k minus 1 is less than equals to n, and k must be equals to greater than 1. For each I between 0 and k minus 1, assign the value of a l plus k plus I to l plus I, ठीक है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज आई हैव दिस एरे 2 1 3 4 5 3, देन चूज l इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 2, ओके। मैंने l इज इक्वल्स टू 1 चूज किया, so now I will simply start from this index, that is first index 2 1 3 4 5 3 में मैं 2 से स्टार्ट करूंगा एंड k is equals to 2 मिला। अप्लाइंग दिस ऑपरेशन द एरे विल बिकम 2 को मैं सिंपली किसके इक्वल बना रहा हूँ, इस एलिमेंट l प्लस k प्लस आई के इक्वल, ठीक है। फिर मैं 1 को किसके इक्वल बनाऊंगा, 4 के इक्वल, फिर मैं 3 को किसके इक्वल बनाऊंगा, 5 के इक्वल, बट यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 था, तो ऑब्वियसली मैं सिंपली इतने एलिमेंट्स को इक्वल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइनल एरे है वो देखोगे तुम, तो 2 को मैंने किसके इक्वल बना दिया, उसके जस्ट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो मैं 2 को उसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल बना रहा हूँ, 1 को उसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल दैट इज 4 के इक्वल बना रहा हूँ। एंड अगर k की वैल्यू बड़ी होती, ठीक है, दैट इज मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, l प्लस 2k माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, ओके। एंड जो साइज है वो मेरा 4 का होना चाहिए, सब एरे का साइज 4, तो मैंने k की वैल्यू कितनी ली है 2, तो 2k कितना हो गया 4, दैट्स वाई आई कैन चेंज ओनली दिस सब एरे दैट इज 2 1 3 4, ओके। मैं 5 और 3 को चेंज नहीं कर सकता, एंड आई एम नॉट चेंजिंग दोज वैल्यूज। नाउ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबली 0 नीडेड टू मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इक्वल। तो मुझे सिंपली बताना क्या है, दैट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूजिंग ऑल दोज ऑपरेशंस, मुझे इस एरे के एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर शॉर्टर फॉर्म में समझाऊं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, दैट मुझे एक n की वैल्यू और पूरी की पूरी एरे गिवन है, ठीक है। मुझे ऐसी वैल्यूज ऑफ k चूज करनी है सच दैट
मैं उस एरे में सारे एलिमेंट्स को इक्वल बना सकूं। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ ये देखते हैं, ठीक है। मुझे n गिवन है और कंप्लीट एरे a गिवन है। नाउ लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल्स। वी हैव अ 3 and 1 1 1, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इक्वल, सो आंसर इज 0। वी हैव अ 2 and 1, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इफ आई हैव 2 and 1, आई विल टेक l एज दिस। एक ऑपरेशन करता हूँ मैं, l यहाँ पे लेता हूँ और k की वैल्यू 1 लेता हूँ। तो मैं सिंपली 2 को किसके इक्वल बना दूंगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, दैट इज 1। मेरी एरे कितनी हो जाएगी, 1 1। कितने ऑपरेशंस लगे, 1। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 1, ठीक है। दैट्स व्हाई आंसर इज 1। देन आई हैव दिस 4 4 4 2 4, तो ये दिखाता हूँ 4 4 4 2 4, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन सिंपली डू इज, मुझे इस 2 को चेंज करना है, मेरा एफिशिएंट ऑपरेशन यही है। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने l इज इक्वल्स टू ये ले लिया, ठीक है, एंड k की वैल्यू कितनी ले ली, 1। तो मैं 2 को किसके इक्वल बना दूंगा, उसके जस्ट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, दैट इज 4, एंड सारे एलिमेंट 4 हो जाएंगे, तो आंसर इज 1, ओके। दैट्स व्हाई फॉर दिस केस आई हैव आंसर एज इक्वल्स टू 1, ओके। इन द सेम वे यू कैन सी बोथ बिलो एग्जांपल्स आल्सो। नाउ मैं अब ये करूंगा कैसे, तो बिगेस्ट हैक ऑफ दिस क्वेश्चन, जो तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझनी थी, ठीक है, कि तुम इस एरे को किस एलिमेंट के इक्वल बनाओगे, ठीक है। सपोज आई हैव अ कंप्लीट एरे, मेरे पास एक कंप्लीट एरे है और मुझे उस एरे में सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है, ठीक है, और मुझे कुछ कुछ ऑपरेशंस गिवन है। तो मैं ऑपरेशंस तो लगा दूंगा, बट फर्स्ट थिंग आई नीड टू नो इज मैं उस एरे को किस एलिमेंट के इक्वल बनाऊंगा, a1 a2 a3 a4 a5। मैं इन सारे एलिमेंट्स को, इन सबकी डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, मैं किसके इक्वल बनाऊं, मुझे यही नहीं पता। सो what you can see from this question is that your value of k will be always greater than equals to 1, okay। तो मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज करूंगा, ठीक है, सपोज आई एम चेंजिंग a1 इन एनी ऑपरेशन, मैं उसको इधर इसके इक्वल बना सकता हूँ, इधर इसके, इधर इसके, इधर इसके, ठीक है। मैं a1 को ऑलवेज उसके राइट एलिमेंट्स के इक्वल बना सकता हूँ, उसके राइट में, बिकॉज k विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो k कहाँ पे आएगा, राइट में, ओके। तो तुम a1 को तो उसके राइट एलिमेंट्स के इक्वल बना लोगे, ठीक है, फाइन। a2 को उसके राइट के एलिमेंट्स के इक्वल बना लोगे, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, बना लोगे, ठीक है। a3 को भी उसके राइट के एलिमेंट्स के इक्वल बना लोगे, a4 को भी बना लोगे, बट फॉर a5 यू कैन नॉट चेंज लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ओके। सो दिस वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन, दैट यू कैन नॉट चेंज लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, बिकॉज तुम k की कैसी भी वैल्यू लोगे, उसके राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स वाई तुम्हारी जो ये वाली कंडीशन है, दैट इज दिस वन, l प्लस 2k माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। दैट्स वाई तुम लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे को चेंज कर ही नहीं सकते। और इन अदरवाइज यू कैन से दैट तुम्हें जो तुम्हारी कंप्लीट एरे है उसको किसके इक्वल बनाना है, सिंपली लास्ट एलिमेंट के इक्वल। सो दिस वॉज द हैक ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन से कि तुम्हें बस इतनी सी चीज क्लिक करनी थी, दैट यू हैव टू मेक कंप्लीट एरे इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है, फाइन। हमें ये जैसे ही पता चला, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया। नाउ व्हाट आई विल सिंपली डू, मुझे इस एलिमेंट के लिए तो कोई ऑपरेशन करना नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास पूरी एरे में एक कंप्लीट एलिमेंट ऑलरेडी है जिसको मुझे चेंज नहीं करना है, ठीक है, फाइन। नाउ I will start from this index, okay। I will simply check whether this element is equals to a5 or not। अगर ये element a5 के equal है, well and good, I will not do anything, I will go for this element, okay। And if it is not equals to a5, then I must have to do some operation to change it to become equal to a5, okay। मुझे कोई operation करना ही पड़ेगा। तो what I can simply do is, मैं k is equals to, मैं एक ऑपरेशन तो क्या कर सकता हूँ, मैं l इज इक्वल्स टू ये ले लूँ एंड k इज इक्वल्स टू 1 ले लूँ एंड सिंपली a4 को a5 के इक्वल बना दूँ, ठीक है। वन सिंगल ऑपरेशन मैं ये कर सकता हूँ, इन वन ऑपरेशन आई कैन डू दैट। बट वन मोर थिंग, दैट यू हैव टू मिनिमाइज नंबर ऑफ ऑपरेशन। तुम्हें नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो मिनिमाइज करने हैं, ओके। सो टू मिनिमाइज नंबर ऑफ ऑपरेशंस,
तुम एग्जैक्टली करोगे क्या, तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे एक ऑपरेशन में मोर देन वन एलिमेंट्स चेंज हो जाएं, है ना, मोर देन वन एलिमेंट्स अगर हो सकते हैं तो इट कैन बिकम इक्वल्स टू A5, सो इट मस्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स A5 के इक्वल बन सकते हैं एक ही ऑपरेशन में, तो ऑब्वियसली यू विल डू दैट, है ना, फाइन, टू मिनिमाइज नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो मैं एग्जैक्टली करूँगा क्या, अभी तो मेरे पास A5 के इक्वल करेंटली एक एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प से सिंपली इसको A5 के इक्वल बना सकता हूँ। बट आफ्टर वन ऑपरेशन आई विल बी हैविंग टोटल टू एलिमेंट्स इक्वल्स टू A5, सिंस ये भी A5 के इक्वल हो जाएगा और ये भी A5 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसकी हेल्प से किसको किसको बना सकता हूँ, सिंपली अगर मैं इस A4 की हेल्प से इन सेकेंड ऑपरेशन इसको बना दूँ और इसकी हेल्प से इसको बना दूँ, तो क्या गैप तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम k इज इक्वल्स टू 2 ले लो अगर यहाँ पे, और l इज इक्वल्स टू ये ले लो, ठीक है, तो A2 के लिए उसका सेकेंड एलिमेंट के इक्वल बन जाएगा और A3 के लिए उसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल बन जाएगा, है ना। तो आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन मैं सेकेंड ऑपरेशन में काइंडली कितने एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, दो एलिमेंट्स को, A2 और A3 दोनों को, ठीक है। एंड अब जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A5 के इक्वल हैं वो कितने हो जाएंगे, 4, ओके। तो ये चीज़ अपडेट करते रहना, तो ये भी A5 के इक्वल, ये भी A5 के इक्वल, ये भी A5 के इक्वल, ये भी A5 के इक्वल। तो अब अगर मेरे पास आगे 4 एलिमेंट्स भी होते तो मैं उन सबको A5 के इक्वल बना सकता था सबकी हेल्प से, है ना। तो करेंटली यही मेरा एक सीन था, दैट मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना गेस करना था, दैट आई हैव टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू A5। आफ्टर दैट सिंपली make a count of number of elements currently you have in the right side of your counter which are equals to A5 already, okay। उनकी हेल्प से तुम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A5 के इक्वल बना सकते हो, हाउ आई हैव ऑलरेडी विजुअलाइज्ड यू, ठीक है। एंड सिंपली तुम हर बार जाओ एक ऑपरेशन में अपना एक आंसर 1 से इंक्रीज कर दो एंड इसकी वैल्यू चेंज कर लो, दैट नाउ आफ्टर दिस ऑपरेशन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इक्वल्स टू A5, ओके। एंड सिंपली इन द एंड ऑफ द एरे, इन द एंड ऑफ जब तुम यहाँ पे आ जाओगे, यू विल हैव योर आंसर एज टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ओके। सो नाउ आई विल शो यू द कोड, यू विल गेट इट ईजिली। मैंने इनपुट ले लिया इनका एंड एरे का इनपुट ले लिया, एंड इनिशियली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंटर के राइट में थे मेरे पास एंड ऑलरेडी इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे वो 1 था, ओके, एंड आंसर इज इक्वल्स टू 0। आई स्टार्टेड फ्रॉम n-2 इंडेक्स एंड टिल मेरा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता। आई विल सिंपली चेक वेदर AI डज नॉट इज इक्वल्स टू an-1। इफ इट इज नॉट, आई विल सिंपली, मुझे एक ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं इस ऑपरेशन में टोटल कितने एलिमेंट्स को लास्ट एलिमेंट के इक्वल बना सकता हूँ, सिंपली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट विद मी राइट नाउ जो ऑलरेडी A5 के इक्वल हैं एंड राइट में है उसके, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने उनको इसके इक्वल बनाया, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई x बाई 2, क्योंकि मेरे पास इनिशियली 2 थे, उन 2 की हेल्प से मैंने 4 बना लिए, तो x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज इफ करंट एलिमेंट मेरा जो है वो ऑलरेडी इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी इक्वल्स टू ए लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, एक इंक्रीज कर दूंगा एंड इंडेक्स एक डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। In the end you will have your answer, okay। So 01120 and 01120, okay। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. You will get the code link in your description of this video. Thank you guys for watching.